Welcome to Aspire Science Academy Yavatmal, the largest educational platform of Yavatmal. We are providing NEET, JEE, MHTCP, NDA, ISER, repeater courses. I, Dr. Sneha Nilesh Kuke, Director of Aspire Science Academy. Today, we are going to discuss NEET 2024 full paper. So, get ready guys for the paper discussion of NEET 2024. Hello everyone, I am Renka Andre, Chemistry Faculty at Aspire Science Academy. Today we will be discussing NEET 2024 paper. I will be discussing the inorganic and the physical part. We will moving to the first question. Let us read the question. Arrange the following elements in increasing order of the electronegativity: nitrogen, oxygen, fluorine, carbon, and silicon. So we all know this is the very easy question. We all know that first most electronegative in the entire periodic table is the fluorine. So we have two options. First and the second option out of that. Second and fourth option. Third and the fourth option we can eliminate it. As now we know that electronegativity is inversely proportional to the size. So we know that the first electronegative element is the fluorine. As we move from left to right in the periodic table, size decreases. That means first one is the most electronegative element is the fluorine. After that fluorine, what comes next? Next one is the oxygen, then nitrogen, then carbon. So we know that after fluorine, the next one is the oxygen. So the first is the option, because first oxygen is given, later nitrogen is given, and here nitrogen is given first, next one is the oxygen. So from that we know that the first one is the correct option. Moving to next question. Moving on to the next question. Question number 54. For a reaction today, reaction is given 2A. It is reversible reaction. So we can find the QC and the Q1. What is given? But 2A, it is reversible, B plus C. And what is given? Kc is given. Can you find the question? Yes. Reaction question Q will be concentration of B into concentration of C divided by A to the A square. So what will be the answer? B is equal to C is equal to A. All that is given. So 2 into 10 raised to power minus 3 into 2 into 10 raised to power minus 3 divided by 2 into 10 raised to power minus 3 square. So all will cancel and the value will become 1. So what is Q? Q is 1. What is QC? Kc? Kc is 2 into 10 raised to power minus 3. And what is Q? Q is 1. So we know that Q is greater than Qc. Whenever Q is greater than Qc, then the reaction goes in the backward direction. So what will be the answer? What will be the answer? If Kc is greater than Q, then the reaction is in the forward direction. But if K is equal to Q, then reaction will be in the equilibrium. So what will be the answer? The third one is the answer. Moving on to the next question. The highest number of helium atoms is asked. So first one is the 4 mole of helium. 4 mole means we know that 1 mole has how many particles? N. That is the Avogadro's number of particles. So 1 U, what do you mean by 1 U? 1 atomic unit. 1 atomic unit is equal to, it is the smallest atom. मतलब उसमें सबसे कम atoms रहेंगे. Next one is the 4 gram of helium. We know that N is equal to weight upon molecular weight. Then what is W? 4. And what is the molecular weight of helium? That is 4. The answer will be 1. And last one is the 2.27 liters at STP. What is the formula number of given volume upon molecular volume? So what will be the answer? Given what is given 2.27 divided by 22. So what will be the answer? 0.01. Out of that, what will come the answer? The first one is the answer. As here 4 moles are given and 1 mole is equal to n numbers. So 4 and 8 will be the answer. So first one is the answer. Moving on to the next question. This one is a very easy question, I guess. Iso means same. What do you mean by thermal? Thermal means heat. So where temperature is constant. So first answer क्या हो गया? Second.
out of which only we have to find one single option and we can find out the correct answer. So पहले इसका आंसर क्या होगा ए, ऐसा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है जिसमें ऐसा दिया है कि सेकंड में इसका आंसर। इफ तुमको नहीं भी पता होगा तो नेक्स्ट वन इज द आइसोकोरिक। इन व्हाट इज कांस्टेंट? डेल्टा V is constant, that is volume is constant, where it is third, so third it is the correct, so option will be four. Moving on to the next question. The energy of an electron at its ground state of n is equal to 1, of which atom? Helium atom is given. So what is the energy formula here? Energy formula is energy is equal to minus 2.18 multiplied by z square upon n square, and this formula is in joule. We have given for what? We have given for helium atom. Helium atom की energy कितनी दी है? minus h2, and we have asked किसकी की है? beryllium plus 3. In what state? n is equal to 2. Let us find out this one. इसका for example हमने helium plus करेंगे तो कितना आएगा? 2.18 multiplied by z square. What is the z value of helium? Z will be equal to 2. That is the atomic number. So 2 square divided by n square. N square is already given. That is the 1 square. What will be the answer? Minus 2.18 multiplied by 2 square. Let us keep that. Next, we will solve for beryllium. For if we will calculate barium plus 3, what will be the same formula we have put? Energy is equal to minus 2.18 multiplied by z square upon n square. What is the value of z for beryllium? Z is equal to how much? 4. Yes. So what will be the answer? Minus 2.18 multiplied by what is z? 4 square upon n square. What is that? N already is given in the question. That is the 2 square. Suppose we will take this as equation 1 and equation. Can we divide it? Yes. So here we can say helium, it was given as minus x2. So what will be the equation? Minus x is equal to minus 2.18 multiplied by 2 square. And for beryllium, that is what we have to find out. Beryllium plus 3. What will be? Minus 2.18 multiplied by 4 square upon 2 square. What we can cancel out? This we can cancel out. If we will solve this question, we will solve this. 2 square 4. Then 4 square 16. It is in divide, so it will go in upward direction. So what will be minus? So what will be the answer? Minus x. Both have same energy, so answer will be the first option. Question number 59. Here compounds are given and your shape and geometry is given. First one is the in ammonia. How many lone pair and how many bond pair will be there? There are three bond pair plus 1 lone pair. So how can we draw it? We can draw nitrogen in the center and 1 lone pair is at the top. Here hydrogen, hydrogen and hydrogen. So geometry here is tetrahedral, but what will be the shape? There are 3 atoms downstairs and 1 is at the apex. So a pyramid is it is forming by how many atoms? By 3 atoms. Therefore the name is triangular pyramid. Next one is the BRF5. In BRF5, how many lone pair are there and how many bond pair are? There are 5 bond pair plus how many lone pair? 1 bond pair. Okay, so the geometry will be in the center there will be Br and fluorine, fluorine, fluorine and fluorine. 1 bond pair will be at top and 1 fluorine will be at the bottom. There is a square and above 1 we have 1 atom. Okay, so we can say the pyramid is forming from the square. So the geometry will be square pyramid. The first option it is given here. First option BRF5 square pyramidal SEF4. In SEF4 we have 4 bond pair plus 2 lone pair. Out of that we can draw octahedral in which HCl is at the center. At the equatorial position we have fluorine, fluorine, fluorine and fluorine. 1 lone pair at the base and another at the bottom. So what will be the geometry here? Square planar. A square is forming, therefore square planar. And last one is the SF6. SF6 is which having the geometry octahedral. So what will be the answer? The first one will be the option. Moving on to the next question. The E naught value for Mn plus P and Mn plus 2 couple is more positive than that of Cr plus 3 and Cr plus 2 Fe plus 3 and Fe plus 2. This is one of the easiest question. Here Mn plus 3 is changing into Mn plus 2.
So let us write the electronic configuration. We know that argon, it is atomic number 25, 25. So what will be the electronic configuration? 25 में आता है 5, तो 3D में कितना आता है electron? 5. And next will be the 4s2. Here how many electrons we have to remove? 3 electrons we have to remove. First one we will eliminate the electron from 4s. Then what will be the electronic configuration? Argon 3d4 4s3. So how many unpaired electrons it is having? 1, 2, 3 and 4. Let us write the electronic configuration of Mn plus 2. Mn plus 2 is having electronic configuration argon 3d5 4s it will be equal to 0. In this case, how many unpaired electrons? 1, 2, 3, 4 and 5. We know that half-filled configuration and fully filled configuration is more stable. Here we are getting which configuration? Half-filled configuration, and half-filled configuration is always more stable. So what we can see? Let us move to the option. Does it goes from plus 5 to plus 4? No, it goes from plus 4 to plus 5. Number of electron changes from plus 4 to plus 5. Why it happens? Because we are getting the more stable electronic configuration. From D5 to D2? No. From D4 to D5? Yes. From D4 to we are moving to D5. So option number will be third. Moving on to the next question. In which of the following equilibria Kp and Kc are not equal? For this reaction, we should know one formula, that is Kp is equal to Kc RT to the power delta n. What is delta n? First of all, we have to find the delta n. What is delta n? Number of moles of product minus number of moles of reactant. In the first case, we will move to the first case. For first one, we have to find the delta n. Delta n is equal to this also equation state. So 1 plus 1, that is 2, minus it is only 1 here is here. We have to write only the cycle. So what will be the answer? 1. Let us put in this equation. What will happen? Kp is equal to Kc RT to the power 1. So what will be the answer? Something to the power 1. That means it will have some value. Okay. So first one is the right option, but we will see the other option as well. H2 plus I2. It is a reversible reaction. For the next question, we will solve it. Delta n. Delta n is equal to here 2. That is the product minus number of moles of reactant. That is 1 plus 1 is equal to 2. So 2 minus 2 is equal to 0. Let us write the equation. Kp is equal to Kc RT to the power delta n. What is delta n? 0. And something to the power 0 is always 1. So Kc will be equal to Kp in this reaction. So Kc and Kp are not equal. In this way also, here two products are given and 2 reactants. 2 minus 2 again 0. In this reaction also 1 plus 1, that is 2 minus 2. It is also equal to 0. So first one will be the option. This is one of the easiest question, that is among group 16 element which does not show minus 2 oxidation state. First of all, what is group 16 members? First one member is the oxygen. O, S, C, A, O. And from top to bottom, which character increases? Metallic character increases. And we all know that metal has the property to lose electron. लूज इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा चार्ज आएगा उस पे? पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो पोलोनियम ये जो मेटल है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, ना कि नेगेटिव. सो व्हाट इज दैट? व्हिच डू नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो व्हाट विल बी द आंसर? पोलोनियम विल बी द आंसर. This one is also correct. Very easy question. Spin magnetic moment is same for which of the following ends? Choose the appropriate answer. Let us write. First one is the titanium plus 3, and then next one is the Cr plus 2, scandium plus 3, Fe plus 2, and Mn plus 2. First we will write for the titanium. Let us write the elements first. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Okay, first one is the titanium plus 3. Atomic number 22. 22 में आता है 2, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन? 4s will be equal to 2. How many electrons we have to remove? We have to remove 3 electrons. So what will be the configuration?
D1. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से आएगा. What will be the configuration here? D1. And the next one, Cr plus. Cr, what will be? It shows anomalous configuration. 3d5, 4s1. How many electrons will be removed? 2 electrons. So one electron goes from here, another goes from here. So 3d4. So 3d4. Okay, 4. Then Mn plus 2. उसके बाद आता है 3d5, 4s2. 2 electron goes from here, 3d5. कितना कॉन्फ़िगरेशन आया? 5. नेक्स्ट वन इज Fe plus 2. Fe उसके नीचे है 3d6, 4s2. How many electron will be? दो यहाँ से जाएंगे, एक ओके, दो यहाँ से जाएंगे तो 3d6 and last one will be the d0 configuration. Okay, so what is the question asked? Spin magnetic moment. What is the formula for spin magnetic moment? Mu is equal to under root of n into n plus 2. Where what is n? N is the number of unpaired electrons. So first one is the one unpaired electron. So value comes 1.73. If 5, then 5.94 electron. I'll give one ring. If the number of unpaired electron is 1, then the value comes 1.7. If 2, then 2.7. If 3, then 3.8. 4, 4.9. 5, 5.9. So here what will be the answer? 1.735 into 5.9. Then 0 will not consider. Now 3d4 and 3d6. So 3d4, how will we put the electrons? 1, 2, 3, 4. Number of unpaired electrons here also 4. In 3d6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The number of unpaired electrons are 4 in both the cases, which is Br and D. So this will be the first option. This is also an easy question. Plot of ln k versus 1 upon d is consistent with the Arrhenius equation. So what do you mean by the Arrhenius equation? Arrhenius equation is k is equal to a e to the power minus e by r. If we put ln k is equal to ln a minus e by rt. This is what the equation is. So it matches with the equation y is equal to mx plus c. What is this one is the y. This is the same intercept. And what is the x-axis given? 1 upon t. So what is the axis here? 1 upon t. So what will be the slope? Minus ea by r. And it is minus. So it will come in the downward direction. So the answer will be here 4 option. Henry's law. It is the question from the solutions. The Henry's law k h values are given of three cases a, b, and c. Let us write the k h values. For a, what is given? 145. For b, it is given 2 into 10 raised to power minus 5, and for c, it is given 35. These are the k h values. And what is asked? The solubility. We know that what Henry said as solubility is directly proportional to pressure. As pressure increases, solubility also increases. For example, we can take an example of open a bottle. In what we see in that CO2 are added inside the bottle. If you release the bottle, the pressure is decreased. If you will tight the bottle, then pressure is increased. So as solubility increases, P also increases. S is equal to, if you have to remove the proportionality sign, KH, that is Henry's constant, into P. What we can write? KH is equal to S upon P. Now we can say that KH is inversely proportional to 1 upon P. मतलब as KH increases, P should decrease. So what we have given? K bar means pressure is given. So with जिसका pressure सबसे कम होगा, उसकी solubility क्या होगी? सबसे ज़्यादा. So सबसे कम किसका है? Pressure B, then C, and then A. Which is the option? Second one will be the option. Failing A solution is, what is failing solution? It is a direct version. It is the aqueous copper solution. First one, the answer. Next one is the boiling point of group 16 element shows the order already given. H2O, H2T, H2AC, H2S. So we can say that melting point or boiling point is directly proportional
proportional to the molecular mass. जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो चाहिए क्या था एक्चुअली, सबसे ज्यादा किसका चाहिए था, H2Te, then H2Se, then H2S और लास्ट में क्या चाहिए था, H2O, but H2O is different. Why? Because it shows which bonding, hydrogen bonding, but extra bonding is there. Therefore उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बाकी उससे क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मतलब ये जो स्टेटमेंट है सो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O is expected to be lower boiling point. Yes, हमने क्या कहा था, जिसका मास कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम। फिर क्या हो गया, H2O is expected to be the lower boiling point than of other members of the group, but due to the presence of extensive hydrogen bonding, जितना ज्यादा होगी बॉन्डिंग उसको तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी, मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट, both 1 and 2 are true. Yes, both 1 and 2 are true, and it is an explanation of the first one. Given below are two statement, two octahedral complexes are given, CONH3/6 plus 3 and COF6 plus 3 are octahedral. Yes, coordination number कितना है यहाँ पे, coordination दोनों का कितना है, 6, मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, octahedral, but they differ in their magnetic behavior. Do they differ? Yes, they differ. यहाँ पे CO plus 3, यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, NH3, ओके, और यहाँ पे कितना है, CO plus 3। क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे जो लिगेंड है वो कौन है, NH3, and NH3 is a ligand which is strong, और CO में जो F दिया है, हैलोजेंस कैसे लिगेंड होते हैं, weak। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, वीक लिगेंड नो पेयरिंग, मतलब ये पेयरिंग करेंगे क्या, नहीं। वी कैन सॉल्व इट बाय द CF2. सो अगर ये क्या दिया है, डायमैग्नेटिक, whereas this is given as paramagnetic. So first one is the CO plus 3. What will be the configuration here? D6 will be the configuration. It splits into two energy levels. नीचे कौन जाता है, T2G, ऊपर कौन जाता है, EG. How many electrons we have to fill? 6 electrons we have to fill. किसको देख के हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, तो कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है, कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्या, पेयर। सो 1 2 3, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का आप जाएगा नीचे, 1 2 3, मतलब 6 के 6 यहां पे पेयर हो गए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, देयरफॉर द गिवन मॉलिक्यूल, गिवन कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, यहां पे जो लिगेंड दिया है वो लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है, तो CO plus 3। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D6 से इट स्प्लिट्स इनटू टू एनर्जी लेवल, नीचे क्या क्या जाएगा, T2G, ऊपर क्या जाएगा, EG। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू फिल, 6 इलेक्ट्रॉन, बट ये कैसा है, वीक है, वीक वाला पेयरिंग करते हैं क्या, नहीं। सो 1 2 3, अभी ये तो पेयरिंग नहीं करता, ये कहां जाएगा, ऊपर। सो 1 2 एंड 1 2 3 4 5 and 6 will come here. Number of unpaired electron is 4, so it is paramagnetic in nature. Let's see both the statement are correct or not. First one is the CONH3/6 and CO, both are octahedral. Yes, they are octahedral, but they differ in their magnetic property. Do they differ? Yes. First one is the diamagnetic and second one is the paramagnetic. Statement दोनों कैसे है, correct है. So what will be the answer? First will be the answer. This is one of the easiest of all questions. 10 भी कभी बच्चे ये सॉल्व करते हैं। On heating some solid, क्या किया हमने? Solid को क्या किया है? Heat किया। Solid को क्या किया? Heat. On heating some solid, changes from solid to direct किसको change किया है? Vapor change। बीच में कौन सा है? Solid to liquid, liquid to vapor. But in this case, solid to direct क्या हुआ है? Vapor. That is the case. And this process is known as, which process it is? It is known as sublimation. What is it is known as? Sublimation. So answer will be the second option. Match the correct pairs. Same. एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी एक भी अगर आता है तो पूरा आंसर निकल सकते हैं। कभी कभी फॉर एग्जांपल किसी ने सॉल्वेंट तो पढ़ा होगा, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट पता है हमें? वाटर सॉल्वेंट पता है, जिसमें भी वाटर एज अ लिगैंड एक्ट करता है वो कौन सा होता है, सॉल्वेंट। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है यहाँ पे कि जिसमें क्या दिया है, वाटर एज अ लिगैंड? पहला सॉल्वेंट, यहाँ पे कौन सा दिया है, वाटर। तो डी का फर्स्ट ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, दो ऑप्शन है। चलो दो ऑप्शन तो है, ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ऊपर से भी स्टार्ट करेंगे।
पहला क्या दिया है लिंक, ये वाला जो है NO2 NO2 को देखकर हम क्या बोल सकते हैं ये लिंकेज है। लिंकेज आइसोमर मतलब क्या होता है, लिंकेज आइसोमर मतलब जिसमें कौन से लिगेंड्स होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। व्हाट डू मीन बाय एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, जिसके पास दो डोनर साइड होती है पर एक टाइम पे वो एक ही साइड से अटैच होता है, उसको क्या कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो हमारे बुक में 3-4 ही दिए हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। एक कौन सा है NO2, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं ON, दूसरा है CN, दूसरा कौन सा है NC, एक है SCN, दूसरा कौन सा है NCS। तो इसका आंसर क्या होगा लिंकेज, पहले का दूसरा, अरे ये भी सेम है, नहीं सॉल्व किया होता तो भी चल जाता। नेक्स्ट वाला यहाँ पे और क्या दिया है 4, यहाँ पे क्या दिया है 3। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है SO4 और Br, ये बाहर जा सकता और ये अंदर आ सकता। सच टाइप ऑफ आइसोमर इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमर। सो इसका क्या आएगा आयोनाइजेशन। अगर नहीं भी आता तो सबसे इजी दो वाले, अगर दो कोऑर्डिनेशंस पेयर दिखते हैं, एक होगा कटायनिक दूसरा होगा नहीं, अगर ऐसा होता है तो कौन सा आइसोमराइजेशन होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमराइजेशन। व्हाट विल बी द आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो फर्स्ट वन विल बी आवर आंसर। ये देख के ही आंसर आ जाने चाहिए थे। नेक्स्ट वन, activation energy of any chemical reaction can be calculated if one knows the, this is the question from Arrhenius equation. What is the Arrhenius equation? K is equal to A e to the power minus EA by RT। ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज EA किस पे डिपेंड करती है, ये टेंपरेचर पे डिपेंड करती है। एक इक्वेशन भी दिया है, कौन सा इक्वेशन है वो ln K2 by K1 is equal to A upon R 1 upon T2 plus T1। सो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया है क्या नहीं। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, नहीं क्या दिया है रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है टू डिफरेंट टेम्परेचर। सो द नेक्स्ट वन इज मैच द बेस्ट गिवन है। एक सबसे बड़ी चीज पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू दैट मच ऑफ फैराडे। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना होता है कितनी ऑक्सीडेशन चेंज होगी, जितनी ऑक्सीडेशन चेंज होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या दिया है इसमें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी विल सॉल्व H2O, ये किस में डिसोसिएट हो रहा है, हमने दिया है O2। ओके सो यहाँ पे क्या चाहिए हाफ O प्लस 2H प्लस, इसको H प्लस बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं मतलब फैराडे कितने चाहिए ये केस में 2 फैराडे। कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड। ऐसे कितना दिया है ये 2 दिए। चलो नेक्स्ट वाला, अगर ये नहीं भी आता क्योंकि इसमें पूरा इक्वेशन कितना था, नेक्स्ट वाला देखते हैं MnO4। सेकंड वन इज द MnO4 माइनस का कन्वर्जन किसमें हुआ है Mn+2। इसमें देख लेते हैं कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। लेट अस फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर। X जिसका फाइंड आउट करना है वो X प्लस 4 into -2 इज इक्वल टू कितना आया -1। देयरफॉर X विल बी इक्वल टू कितना आया +7। मतलब +7 से किसमें चेंज हुआ +2 में चेंज हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आया यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। और हमने क्या कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब उतने फैराडे, मतलब यहाँ पे कितने ये केस में कितने फैराडे लगेंगे 5 फैराडे। सो व्हाट विल बी द आंसर, बी का 5 फैराडे का है 4 ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर विल बी 2। ओके और यहाँ पे भी इजी है, यहाँ पे -2 तो यहाँ पे क्या आएगा +2 और इसका अगर 2x + 3 × -2 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। तो क्या आ गया 2x - 6 इज इक्वल टू 0। x will be equal to कितना आया +3। कितना चेंज आया यहाँ पे +2 से यहाँ पे चेंज हुआ +3। कितना फैराडे लगा यहाँ पे 1 फैराडे। सो इजी है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी? Ionization enthalpy is the energy required to remove the outermost electron. So we know that ionization we also can say IP is inversely proportional to size. Size as size increases, IP क्या होता है increase, and we know from left to right in the periodic table क्या होता है Z factor, that is the
न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, देयरफॉर आईपी क्या होगा ये केस में, इंक्रीज होगा। तो ये सेकंड पीरियड के सब एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको अच्छे से अरेंज करते हैं। पहले क्या है, लिथियम, देन कम्स बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन। लेट अस राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है, 2s2, 2p कितना होता है, 3। कार्बन का 2s2, 2p2, देन 2s2, 2p1, एंड बेरिलियम का क्या होता है, 2s2, 2p0, यहाँ पे क्या आएगा, 2s1। सो हमने क्या देखा था, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते जाते z इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज, तो ip क्या होता है, इंक्रीज। सो ऑर्डर क्या है चाहिए, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन क्या है, लिथियम। और ये तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा किसका चाहिए था, नाइट्रोजन। कितने केस में, 1 2 3 केस में किसका है, नाइट्रोजन का जाता है। नेक्स्ट किसका है, कार्बन, तो यहाँ पे किसका दिया है, बोरॉन। मतलब नेक्स्ट वाला जो है कार्बन, नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, यस कार्बन आता है। बट यहाँ पे वो शो कर रहा है कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन, क्यों, क्योंकि इसमें देखो NH2, N पे कितना है 1, और यहाँ पे क्या है NH2S2 है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन उसने इजीली दे दिया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन किस में चेंज हो जाएगा, हाफ फील्ड। एंड वी नो दैट हाफ फील्ड कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, इसीलिए पहले किसका आ जाता है, इन दोनों में से एक्सचेंज होता है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, और उसके बाद किसका आता है, लिथियम। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, लिथियम इसमें लास्ट है, देन पहले क्या, नाइट्रोजन, कार्बन, फिर उसके बाद क्या है, बेरिलियम। सो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। Which one of the following is not a redox reaction? What do you mean by redox? Redox मतलब क्या होता है, red ox than pink। नहीं, red means reduction और दूसरा means oxidation। Either increase or decrease in oxidation state चाहिए इसमें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, Zn plus CuSO4। Zn की oxidation इस स्टेट में कितनी है, 0 है। CuSO4 इसमें क्या है, -2, तो इसमें क्या है जाएगा, +2। और यहाँ पे Zn का क्या आएगा, +2, और यहाँ पे क्या आएगा, -2। तो 0 किस में चेंज हो रहा है, +2। मतलब 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंज हो रही है, +2। मतलब इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट था +2, और यहाँ पे क्या है, 0। तो इट इज अ रेड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, K + 2KCl3 + I2 to give। तो उसमें देखते हैं 2K+, मतलब K पे कौन सा चार्ज है, प्लस, यहाँ पे भी कौन सा है, प्लस। आयोडीन बाकी का सब सेम है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज हुई क्या, देखते हैं। यहाँ पे जो Cl है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये 0। मतलब -1 का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, 0 में हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इसमें भी क्या है, रेडॉक्स है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, H2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। क्या दे रहा है, इसमें क्या आएगा, -1, और इसमें क्या आएगा, +1। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। मतलब आंसर कौन सा है हमारा, फोर्थ ऑप्शन। देख लेते हैं एक बार, Bn में यहाँ पे चार्ज है +2, इसमें क्या है, -2। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, +2, और इसमें क्या है, -2। मतलब बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कहीं भी चेंज नहीं हुई, मतलब ये रेडॉक्स शो नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर इज 4। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है और उसकी इंफॉर्मेशन दी है। सो देयर आर हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इज एन एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एड्रेस बताने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत है। पहला क्या है, N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर, M is the magnetic quantum number and S is the spin quantum number. For example, ये हमने अगर एटम कंसीडर किया, ये क्या है, इसकी शेप N is equal to कितना है 1, N is equal to कितना है 2। N मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम। जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, मतलब N की वैल्यू इंक्रीज होती है, वैसे साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो N tells us about the size। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें D का वैल्यू सेकंड है, D सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो दिस tells us about the size। नेक्स्ट इज द L वैल्यू। L किसके बारे में बताता है हमें, तो L हमें बताता है शेप। फॉर एग्जांपल L की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 0 1 2 3। फॉर L इज इक्वल टू 0 S P D है। और हमें पता है S कैसा होता है, स्फेरिकल, P कैसा होता है, डबल, D कैसा होता है, डबल, और F कैसा है, अनडिफाइंड। मतलब L किसके बारे में बता रहा है हमें, शेप ऑफ ऑर्बिटल। सो शेप ऑफ ऑर्बिटल C का क्या है 1, C का क्या है 1। सो और L किसके बारे में बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल, और M S स्पिन।
तो वो किसके बारे में होता है? स्पिन। तो आंसर विल बी अवर सेकंड क्वेश्चन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following entropy increases? What do you mean by entropy? Entropy मतलब क्या होता है? Randomness। क्या होता है? Randomness। जहाँ randomness increase होती है वहाँ entropy भी क्या होती है? Increase होती है। तो entropy is denoted by the letter delta S। मतलब for example अगर ये solid है, ठीक है, solid का कन्वर्जन अगर लिक्विड हो रहा है या फिर गैस हो रहा है तो इसमें randomness कैसी है? कम है। बट इस केस में randomness कैसी है? ज्यादा है। मतलब ये क्या होता है? ज्यादा रैंडम है, डेल्टा एस की वैल्यू कैसी है? ज्यादा है। पहले क्या दिया है? अ लिक्विड वेपर इवेपोरेट्स टू वेपर। वो वेपर में इवेपोरेट होगा, मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली थोड़े से पास में होंगे और नेक्स्ट उसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है? वेपर। तो वेपर कैसे होगी? धूल। मतलब यहां से आ जाते जाते एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज। मतलब रैंडमनेस क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज। तो यहां पे क्या हो रही है? रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, टेंपरेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। मतलब क्या इसमें टेंपरेचर ज्यादा है, इसमें टेंपरेचर क्या है? कम है। तो टेंपरेचर अगर कम होता है एक्टिवेशन एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम। अगर हमें बोला होता कि टेंपरेचर बढ़ रहा है तो हम बोलते थे कि एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्या है? 2, यहाँ पे सॉलिड का कन्वर्जन किसमें हो रहा है? सॉलिड गैस गैस। मतलब ये केस में भी एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये केस में देखते हैं गैस गैस में ही कन्वर्ट हो रहा है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री है वो कितनी है? 1 है। बट यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 2। मतलब एक से ज्यादा कितने हैं? 2। मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए, सी और क्या हो गया? डी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। So question number 85, 1 gram of sodium hydroxide। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? 1 मोल ऑफ क्या रिएक्ट किया है? NaOH। कितना मोल? 1 मोल प्लस कितना मोल? तो यहाँ पे क्या चाहिए? HCl। क्या देगा? NaCl प्लस क्या देगा इसके साथ? H2। मतलब जब मैंने 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH लिया उसके साथ कितने मोल रिएक्ट करने पड़ेंगे? 1 मोल ऑफ HCl। और क्या देगा? 1 1 1। मतलब ये क्या है सब? सेम। और इंफॉर्मेशन क्या दी है हमें? जो ये दिया है कितना ग्राम दिया है? फॉर एग्जांपल 1 ग्राम दिया है। यहाँ पे जो HCl दिया है उसके बारे में क्या पता है कि 25 ml की है, 0.75 मोल। मतलब जो HCl है वो कितना दिया है? 25 और यहाँ पे 0.75 मोल सॉल्यूशन। सो अगर एक मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो 1 मोल ऑफ NaCl और 1 मोल ऑफ H2O बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है M क्या लिख सकते हैं? हम N/V लिख सकते हैं। तो N क्या लिखेंगे? M/V। मतलब इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट होंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए? HCl के लिए क्या लिख सकते हैं हम? HCl के लिए क्या लिखेंगे? M कितना दिया है हमें? 0.75 मल्टीप्लाइड बाय क्या दिया है? V कितना आएगा? 25 डिवाइडेड बाय 1000। हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये 1 मोल HCl हो गया। हमें और क्या चाहिए? 1 मोल ऑफ NaOH। तो NaOH के बारे में सिर्फ क्या दिया है? x ग्राम दिया है। तो ठीक है, हम उसको x कंसीडर कर लेंगे। तो वही यही सेम फार्मूला पुटअप करके हम क्या लिख सकते हैं? H और एक फार्मूला है वेट अपॉन क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। तो वेट कितना है इसका? हमें पता नहीं, हमने x कंसीडर किया और मॉलिक्यूलर वेट पता है हमें NaOH का कितना है? 40 ग्राम। अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं मतलब x अपॉन 40 इज इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। अगर इसका वैल्यू हम निकालते हैं उसकी वैल्यू आएगी 0.75। तो ये जो 0.75 है ये रिएक्टेड है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट क्या है? अनरिएक्टेड। मतलब ये कितना बचा है हमारा? ये रिएक्टेड हो गया। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 माइनस 0.75 मतलब कितना हो गया? 0.25। ठीक है, और इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं mg में तो आंसर क्या आएगा? 250 मिलीग्राम। सो दिस वन इज द आंसर। This one is the direct NCERT की लाइन पूछी गई है। यहाँ पे क्या पूछा है? During the preparation of more salt, which is already given, what is ferrous ammonium sulfate? Which of the following acid is added to prevent the hydrolysis of acid? ये डायरेक्ट NCERT में लाइन दी है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? dilute sulfuric acid. So 4 is the option. Question number 90. Consider the following reaction to receive Wilson at equilibrium. So equilibrium का ये क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है इसमें? हमें N2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया, O2, NO और एक रिएक्शन दी है। तो ये रिएक्शन हम यहाँ पे वापस से लिखते हैं। क्या ये रिएक्शन? इसमें से हम Kc फाइंड आउट कर सकते हैं। Kc मतलब क्या? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो क्या आएगा इसका? N2 concentration of N2 into concentration of O2 divided by NO to the power 2। ठीक है, ये आ गया। ऑलरेडी सब वैल्यूज गिवन है।
पुट कर लेते हैं Kc की वैल्यू। Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या है N2 कितना दिया है 3 into 10 raised to power -3 मल्टीप्लाइड बाय O2 की कंसंट्रेशन कितनी दी है 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power -3 डिवाइडेड बाय n और 2 का स्क्वायर तो 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power -3 इसका करेंगे हम स्क्वायर तो कितना आएगा 3 into 4.2 multiplied by 10 raised to power -6 divided by 2 into 8 into 10 raised to power -6 ठीक है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और हम ये रिएक्शन सेम कंसीडर करते हैं क्या लिखा है यहाँ पे 2NO और ये इसमें रिलेशन किसका पूछा है व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसके बारे में पूछा है तो ये कैसे लिख सकते हैं हम N2 प्लस क्या है O2 इसका हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जब रिएक्शन स्टार्ट ही होने की थी तब ये कहा कुछ ना कुछ अल्फा होगा यहाँ पे क्या आएगा 0 0 जब रिएक्शन स्टार्ट हुई एट टाइम t कुछ टाइम t के बाद इसको क्या लिखेंगे कुछ कम हो गया मतलब पर माइनस अल्फा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अल्फा बाय 2 और यहाँ पे भी क्या आएगा अल्फा बाय 2 अभी इस पे हम Kc की वैल्यू पुट करेंगे तो Kc आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सेम है तो क्या लिखेंगे अल्फा बाय 2 इनटू कंसंट्रेशन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा अभी ये दो जो इक्वेशन है अगर हमने उसको इक्वेट कर दिया तो हमको आंसर किसका मिल जाएगा आंसर इक्वेशन किसका मिल जाएगा अल्फा मिल जाएगा इसमें सब वैल्यूज हमें पता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा बाय 2 इनटू अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3 इनटू 10 raised to power 10 raised to power -6 ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम 3 into 4.2 divided by 2.8 ठीक है अल्फा इनटू अल्फा क्या लिखेंगे हम अल्फा स्क्वायर 2 into 2 क्या आ जाएगा 4 1 minus अल्फा is equal to 3 into 4.2 divided by 2.8 अगर यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की तो आंसर आएगा 0.717 ठीक है तो ये सॉल्व कर लेना आगे का तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं next question the work done during the reversible isothermal expansion ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है वर्क का क्या लिया है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है W that is work of which reaction reversible reaction is equal to minus nRT ln P1 upon क्या होता है P2 अगर इसमें इसको अगर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा -2.303 multiplied by nRT and this P should be in P कितना होना चाहिए हमारा कैपिटल होना चाहिए log क्या लिखेंगे हम P1 upon क्या लिखेंगे P2 ऑलरेडी सब वैल्यू क्या दिया है 25 डिग्री सेल्सियस इसको हम कन्वर्ट करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस मतलब +273 कितना आ जाएगा ये केल्विन में 298 केल्विन टेंपरेचर गिवन है R गिवन है और क्या गिवन है प्रेशर ये रहा P1 और ये क्या रहा हमारा P2 ऑलरेडी सब गिवन है लेट्स पुट हियर क्या आएगा -2.303 मल्टीप्लाइड बाय n कितना दिया है वो ड्यूरिंग वन वॉट n की वैल्यू क्या कितनी दी है 1 मल्टीप्लाइड बाय और r ऑलरेडी गिवन है कितना है 2 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय टेंपरेचर कितना है 298 मल्टीप्लाइड बाय log P1 upon P2 P1 कितना दिया है 20 सो 20 डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा यहाँ पे -2.303 मल्टीप्लाइड बाय 2 इनटू 298 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय 0 गेट कैंसिल log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दूसरी सीरीज की माइनस में आंसर आता है इसका तो माइनस वाला कौन सा है एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें क्या दिया है माइनस दिया है सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है एक ही है तो आंसर क्या आता है इसका -413.4 कैलोरी इज गिवन द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग I ये A दिया है मतलब करंट दिया है तो I दिया है I कितना दिया है 9.6487 एम्पियर ठीक है और क्या दिया है अ वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन T दिया है टाइम कितना दिया है 100 सेकंड्स फिर उसके बाद मोलर मास दिया है कितना है 63 ग्राम होल इनवर्स तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है वेट फाइंड आउट करने का वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय I इनटू T अगर ये हम पुट कर दे इसका वैल्यू आ जाएगा वेट ही पूछा है एग्जाम में क्यों मतलब क्या इक्विवेलेंट वेट किसका इक्विवेलेंट वेट तो कॉपर का इक्विवेलेंट ये रिएक्शन कैसी होगी Cu plus
Cu plus 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है किसी कंफर्मेशन होता है कॉपर सो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इक्विवेलेंट वेट में n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2 तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 63 divided by 2 multiplied by 96500 multiplied by I already given कितना है 9 I कितना दिया है 9.6487 multiplied by T that is temperature 0000 get cancel कितना बचा है 63 multiplied by 9.6487 divided by 2 into 965 ठीक है इसको ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है अगर इसको हम क्या कर सकते हैं 100 में कन्वर्ट कर दे तो 63 into divided by 2 into 964 multiplied by 10 raised to power minus 2 into 10 raised 968 तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना बचा 63 divided by 2 into 10 raised to power minus 2 अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.3156 grams okay what will be the answer second one is the answer so the next question is 93 the rate of the reaction particles when temperature changes from 27 degrees celsius to 57 degrees celsius calculate the activation energy or RBE so ये किसका क्वेश्चन है हमारा अर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है तो उसका डायरेक्टली एक फार्मूला है हमारा पर सबसे पहले हम टेंपरेचर को कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि वो केल्विन में चाहिए सो T1 is equal to T1 कितना है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या आएगा 27 प्लस 273 केल्विन मतलब कितना आ गया 300 केल्विन आ गया T2 क्या है इसमें 57 डिग्री सेल्सियस तो 57 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना आ गया 330 केल्विन इसका डायरेक्ट क्या है फार्मूला log K2 अपॉन क्या है K1 is equal to EA upon 2.303 R log T2 minus T1 upon T1 into क्या है T2 क्या बोला है the rate of the reaction क्या बोला है quadruple मतलब क्या 4 टाइम क्या हो गया है इंक्रीज हो गया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं जो K2 है वो 4 टाइम्स ऑफ क्या है K1 है डिवाइडेड बाय क्या आया K1 क्या हो गया कैंसिल पूछा गया है हमें EA पूछा है 2.303 R की वैल्यू भी गिवन है कितनी दी है R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय log T2 minus T1 330 minus K तो डायरेक्ट लिख रही हूं 30 upon 300 into 330 ठीक है तो क्या आ गया log 4 ऑलरेडी log 4 की वैल्यू दी है 0.6021 is equal to EA upon 2.303 multiplied by 8.314 multiplied by 00 get cancel कितना बचा है log 3 upon 30 into ठीक है अगर हमने ये राइट हैंड साइड पे ले लिया EA 0.6021 multiplied by 0.303 into 8.314 is equal to EA into log 3 upon 330 into 30 अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी EA की वैल्यू कितनी आती है 38044 इतना क्या आता है जूल्स आता है बट आंसर इसमें पूछा है हमें किलो जूल्स तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं किलो जूल में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 38 into 10 raised to power -3 लिख सकते हैं तो आंसर कितना आएगा आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन कंसंट्रेशन तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है पाई इज इक्वल टू क्या है CRT और ग्राफ किसके बीच में दिया है y वर्सेस c मतलब ये किसको मैच कर रहा है कौन सा इक्वेशन को y इज इक्वल टू क्या है mx तो यहाँ पे स्लोप क्या है RT और c क्या है हमारा कांस्टिट्यूशन तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा पाई और यहाँ पे क्या आएगा c मतलब स्लोप क्या दिया है हमें RT और यहाँ पे ऑलरेडी स्लोप की वैल्यू गिवन है मतलब जो हमारा स्लोप है वो क्या आया है RT आया है तो RT की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी दी है 25.75 लीटर बार मोल इनवर्स और स्लोप की दी है R की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं RT इज इक्वल टू 25.75 T टेम्परेचर पूछा है तो T इज इक्वल टू 25.75 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू भी मैंने कितनी 0.03 इतनी वैल्यू दिया है अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा 310 केल्विन और मोस्ट ऑफ द
लोग क्या करेंगे, ये आंसर टिक करेंगे। बट ये जो आंसर आया है हमारा, ये आंसर किसमें है, केल्विन, क्योंकि इसमें देखो R का जो यूनिट दिया है ये किसमें दिया है, केल्विन इनवर्स, मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो किसमें है, केल्विन में। अभी हमको ये किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू दी है, मतलब 310 माइनस 273 केल्विन, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 37 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। आई होप ये तुमने सही किया है। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, 90 से दो स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, CONH3/6 is a homoleptic complex. What do you mean by homoleptic complexes? जिसमें सिंगल टाइप ऑफ लिगैंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हाँ ये होमोलेप्टिक है। नेक्स्ट क्या है, CONH3/4 Cl2+ is a heteroleptic complex. हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, जिसमें एक या एक से ज्यादा टाइप ऑफ क्या होते हैं, लिगैंड होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 2 दिया है, complex CONH3/6 plus has only one type of ligand. Yes, it has one type of ligand। और इसमें क्या है, CONH3/2 इसमें एक से ज्यादा है, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है हेटेरोलेप्टिक। तो स्टेटमेंट 1 as well as स्टेटमेंट 2 दोनों ही कैसे है, ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर विल बी आवर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। Next, the pair of lanthanide ions are diamagnetic। तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है कि जनरली पूरी सीरीज नल में होती है, 14 एलिमेंट्स है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे तो इसमें से एनालॉगस बिहेवियर है। एक ट्रिक तुम याद कर सकते हो कि जो अपर वाले एलिमेंट्स है और जो नीचे वाले एलिमेंट्स वही डायमैग्नेटिक रहेंगे, क्योंकि F1 से लेके F2 F3 F4 ऐसे करके 7 तक भी है नॉन पेड इलेक्ट्रॉन है। उसका नेक्स्ट 8 9 10 ऐसा ऑलमोस्ट सभी जैसे रहेंगे उसमें पैरामैग्नेटिक। तो जनरली जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हमें बहुत सारे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, वो केस में हम लोग सिर्फ क्या पूछा है, डायमैग्नेटिक पूछा है। तो अपर और लोअर वाले एलिमेंट्स कंसीडर करो। तो हम पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। पहले कौन सा है, सेलिना, प्रीति एंड अमिता, तुमपे, देन सैंडी, यूरोपियन, वर्डिने, द बियर्ड, बिली, क्वीन और तुमने ये तो से ब्लू कर दिया। अब इतने सारे एलिमेंट्स के तो है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए तो आप इजीली कर सकते हो। EU कैसा आता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और ZRBM कैसा आता है हमें, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसा होता है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले जो स्टैटिक वाले दिखते हैं वो लिखते हैं, क्योंकि यूरोपियम अगर +2 है मतलब ये हाफ फिल्ड है, तो ये तो आने से रहा, ठीक है। तो ये तो गया, यहाँ पे भी गया, ये भी गया, और क्या बचा, अभी ये दोनों बचे हैं। तो ये देख लेते हैं कहाँ के एलिमेंट है, एक तो ऊपर का होना चाहिए या फिर नीचे का होना चाहिए। पहले चेक कर लेते हैं, पहले ये दोनों चेक करें। सेरियम कितना दिया है, +4 दिया है, तो ये रहा सेरियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, Z1 4f5d, और क्या आता है 6s। तो इसका आता है, हमेशा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, इसमें होता है 1। और सेरियम में कितना रहेंगे, ये केस में सॉरी ये केस में F में कितना होता है 1। तो कितना दिया है, +4 दिया है। +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f0। ऐसा तो कोई हम ये दो तो पहले ही हट करके अभी बचा है फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये इजी था। तो सेरियम +4 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +4। नेक्स्ट कौन सा दिया है, यटरबियम। तो यटरबियम डन कर देना चाहिए था। यटरबियम कैसा है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या आएगा यहाँ पे, ज़ेनॉन फुल्ली फिल्ड पूरा है तो 4f कितना आएगा 14, 5d कितना आता है 0, 6s में कितने हैं 2। यटरबियम कितना दिया है +2, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे और क्या बनेगा 4f14। 4f14 कैसा है, फुल्ली फिल्ड है, इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये सब्सटेंस कैसा हुआ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमेशा याद रखना, अगर डायमैग्नेटिक ढूंढना है कोई भी सीरीज में तो ऊपर वाले और नीचे वाले चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट।